آج کا جو کلام خدا ہے وہ ہم پڑھنے کو ہیں. دوستو یاد رکھیے گا, آج میں آپ سے کچھ سیکھوں گا اور آپ مجھ سے کچھ سیکھیں گے. شارٹ میسج کریں گے 15 منٹ کا, تاکہ خداوند اس 15 منٹ میں بڑی برکت دے. ہم سبھی مسیحی گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم سبھی کو پتا ہے کہ مسیحی کون ہے, یا بائبل مقدس کون ہے, یا خداوند خدا کون ہے. ابھی چھوڑ دیں, لاک لگا دیں. اچھا ادھر سے دیکھ لو. تو ابھی سنیے گا ذرا غور سے, فوکس کریے گا, 15 منٹ ہے صرف. تو سمجھیے گا کہ میں آپ سے آج کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اگر کسی کو سوال کا جواب نہ آئے تو مسئلہ نہیں, آپ غلط دے سکتے ہیں. ہم بھی غلط سوال کا جواب دے دے کر ہی صحیح سیکھیں. جواب غلط دینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جاتی ہے, اور اس کے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی برکت پاتے ہیں, انہیں بھی صحیح چیز کا پتہ چل جاتا ہے. آج وہ کہ عبادت جو ہے وہ شکر گزاری کی ہے. تنویر بھائی, یوحنا بھائی, ذکریہ بھائی, نوید بھائی, ہم سبھی نے مل کر, ماں باپ نے, سربراہ ہیں جو گھر کے, سبھی نے مل کر اس عبادت کو سر انجام دیا, اور ہم نے خدا ان کی شکر گزاری کو سب سے پہلے آگے رکھا. تو دوستو ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ خدا کی شکر گزاری کیسے کی جاتی ہے؟ کیسے کی جاتی ہے خداوند کی شکر گزاری؟ پرستش سے زبردست. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی چیز گم ہو جائے نا تو ملتی ہے تو شکر ہے خداوند کا. شکر ہے خداوند کا, ویری گڈ. اور کوئی؟ خدا کے حکموں پر خدا کے حکموں پر عمل کر کے. اور کیسے خدا کی شکر گزاری یا خدا کا شکر ہم کن کن کنڈیشن میں کرتے ہیں؟ برے حالاتوں میں خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے یہ. تو اور اگر ہم ٹو دی پوائنٹ بات کریں, آج کی جو ہم نے عبادت رکھی ہے, یہ ہم کیسے شکر گزاری خداوند کے سامنے بخور کی مانند پہنچا سکتے ہیں. تو دوستو آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ کلام نہیں سنا ہوگا, پڑھتے ہم بہت کم ہیں, لیکن آج سنیے گا کہ خداوند کی ایکچوئل شکر گزاری ہوتی کیسے ہے. یہ خدا کیا کہتا ہے کہ میری شکر گزاری کیسے ہوگی. میں آپ کے سامنے 3 یا 4 آیتیں مقدسہ پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے, تھوڑی کنفیوژن کلیئر ہو کہ شکر گزاری کی کیسے جا سکتی ہے. کیا عبادت کرنے سے, کیا حمد و ثنا کرنے سے, کیا دعا کرنے سے, یا کھوئی ہوئی چیز ملنے پر شکر گزاری کرنے سے, بائبل پڑھنے سے, کن چیزوں سے خداوند کی شکر گزاری ہوتی ہے؟ یہ خدا ہمیں خود بتائے گا. یہ خدا ہمیں خود بتائے گا. زبور 119 میں آپ دیکھتے ہیں اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا. دوستو یہاں پر خداوند فرماتا ہے, خدا کا بندہ داؤد نبی فرماتا ہے کہ جب میں تیری صداقت یعنی سچے حکموں کو سیکھ لوں گا تبھی دل سے تیری سچی شکر گزاری کروں گا. شکر گزاری ہوتی کیسے ہے؟ خدا کے حکموں کو سیکھ کر اس پہ عمل کرنے سے. مینز کہ خدا نے جو ہمیں حکم دیے ہیں, اگر ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو وہ شکر گزاری نہیں ہے. چاہے آپ گیت گا لیں, چاہے آپ دعا کر لیں, چاہے آپ حمد و ثنا کر لیں, چاہے آپ عبادت کر لیں, چاہے آپ کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لیں, کسی قسم کا بھی اچھا کام کر لیں, کسی کام کا فائدہ نہیں. کیونکہ کلام خدا فرماتا ہے کہ جب تم صداقت کے حکموں کو سیکھ کر ان پر عمل نہ کرو گے, یہ شکر گزاری کسی کام کی نہیں ہے. انسان کی کتاب میں لکھا ہے, انسان اپنے دل میں یہ سمجھتا ہے کہ میں جس راہ پر چل رہا ہوں وہ بہت ہی خوبصورت اور اچھی ہے, لیکن آخرت میں اس کا انجام موت ہوتا ہے. ہم اپنے دل سے تو کہتے ہیں کہ میں خداوند کی شکر گزاری کی عبادت کر رہا ہوں, یا لوگ یہاں پر آئے ہیں یسوع کا نام لے رہے ہیں, لیکن دوستو آخرت میں اس کی موت ہوگی, کیونکہ ہمیں طریقہ صحیح نہیں پتا. دن میں شکر گزاری ہم کریں, رات میں خداوند کے گناہ کریں, دن میں خداوند کے سامنے گناہ کریں, تو یاد رکھیے گا وہ شکر گزاری کسی کام کی نہیں. آپ اپنے ہونٹوں سے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, اپنے جسم سے خداوند کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. اسی جسم سے ہم گناہ بھی جب کریں تو 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے. ہم خدا کو پیچھے کر دیتے ہیں اور شیطان ابلیس کو آگے لے آتے ہیں. یہاں پر کلام خدا فرماتا ہے کہ جب تک میں تیرے حکموں پر عمل نہ کروں میری شکر گزاری ہو ہی نہیں سکتی. ایک سکون سے, آرام سے, اگر آپ مردوں کو زندہ نہیں کرتے, آپ بدروحوں کو نہیں نکالتے, آپ معجزے نہیں کرتے, آپ کے پاس غیر زبان نہیں ہے, آپ کے پاس غیر زبان کا ترجمہ نہیں ہے, آپ کے پاس حکمت نہیں ہے, آپ کے پاس علمیت نہیں ہے, لیکن اگر آپ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو آپ زندہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں.
दोस्तों हर एक चीज से सबसे पहले है खुदा की शुक्रगुजारी। हर एक चीज में खुदावंद की शुक्रगुजारी करना, और उसका फॉर्मूला जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो ये है कि जब हम तेरे सदाकत के हुक्मों पर अमल करते हैं तभी शुक्रगुजारी करते हैं। याद रखिएगा, बाय द वे उसके अलावा शुक्रगुजारी हो ही नहीं सकती। दूसरी आयत मुकद्दसा आप देखते हैं, यही ज़बूर 119 की 54 वर्स, उसका 54 वर्स का मैं नीचे वाला हिस्सा पढ़ूंगा और फिर साथ में 55वीं आयत पढ़ूंगा। गौर से सुनिएगा यहां पर क्या लिखा है, तेरे आइन मेरा गीत रहे हैं। खुदा के हुक्म क्या कहता है, मेरा गीत रहे हैं। अगर मैं ये गीत गाता जाऊं और गुनाह पर गुनाह करता जाऊं तो ये दोस्तों शुक्रगुजारी नहीं। वो कहता है कि मैंने गीत और ज़बूर किसको बना लिया, तेरे हुक्मों को। मैं जब तेरे हुक्मों पर अमल करता हूं, मैं जब बुरी रविशों से दूर रहता हूं, मैं जब बुरे काम नहीं करता, मैं जब गुनाह नहीं करता, तो वही मेरा गीत और वही मेरा ज़बूर है। और आगे 55 आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद रात को मैंने तेरा नाम याद किया है और तेरी शरीयत पर अमल किया है। कितने लोग हैं जो रातों को उठ के खुदा के कलाम को पढ़ते हैं या फिर दुआ करते हैं? एक आदमी है, दूसरा आदमी है। याद रखिएगा दोस्तों, रातों को काले जादू वाले अपना काम जोरों शोरों से कर रहे होते हैं। रात को शैतान इब्लीस पूरी ताकत में आया होता है, लेकिन रास्तबाज सोया होता है। रास्तबाज रूहानी भी सोया होता है और जिस्मानी भी सोया होता है। यीशु मसीह पूरी पूरी रात दुआ करते थे, लेकिन हम रास्तबाज सोए होते हैं। और खुदा का बंदा दाऊद नवीस, ज़बूर नवीस फरमाता है कि मैं रात को तेरा नाम याद कर करके तेरी शरीयत पर अमल करूंगा। यह है दोस्तों शुक्रगुजारी। और आगे हम देखते हैं इसी बाब के अंदर आप देखते हैं किताब मुकद्दस के अंदर जो कलाम खुदा में हमारे पास मौजूद है, 62 आयत 62वीं आयत में लिखा है, तेरी सदाकत के अहकाम के लिए मैं आधी रात को तेरा शुक्र करने को उठूंगा। यानी कि जो तूने हमें हुक्म दिए हैं, जो तूने हमें शरीयत दी है, जो तूने हमें अहकाम खुदाबंदी दी है। याद रखिएगा, इंसान बचता ईमान से है। जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो आप बच गए, आप पर सजा का हुक्म है ही नहीं, आप जन्नती हो गए। लेकिन जो जिंदगी गुजारनी है, उस जिंदगी को गुजारने के लिए कुछ तरीकाकार भी होता है। आप यूके, अमेरिका, लंदन चले जाते हैं, वहां पे पाकिस्तानी रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते, वहां के रूल्स अलग हैं। इसी तरह जमीन पर आप रहते हैं तो आप जन्नत में जाकर जमीन के रूल्स फॉलो नहीं कर सकते, वहां के रूल्स अलग हैं। जब आप यीशु मसीह पर, खुदा के बेटे यीशु पर ईमान ले आते हैं, तब आप जन्नती हो जाते हैं, तब आप जलाली हो जाते हैं। लेकिन उन जलाली जिस्म को पाए रखने के लिए, उस निजात को हासिल करने के लिए, उस निजात में रहने के लिए हमें कुछ हुक्म पर अमल करना पड़ता है। अगर मैं दिन रात यीशु यीशु करता रहूं, बाइबल पढ़ता रहूं, दुआ करता रहूं, लेकिन मेरे काम इब्स हों, मेरे काम नफी के हों, मेरे काम गुनाहगारी के हों, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये शुक्रगुजारी किसी काम की नहीं। क्योंकि लिखा है, तेरी सदाकत के अहकाम के लिए मैं आधी रात को तेरा शुक्र करने को उठूंगा। खुदावंद के लोग आधी रात को उठते हैं खुदावंद का शुक्र अदा करने के लिए। खुदावंद तूने हमें ये हुक्म दिए कि जिन पर हम अमल करके पाक और पाकीज़ा हो जाते हैं। आखिरी आयत पढ़ेंगे, 93 वर्ड्स में लिखा है, बहुत खूबसूरत आयत है, इसको सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब आयत है। मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा, यानी कि मैं तेरे हुक्मों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि तूने उन्हीं के वसीला से मुझे जिंदा किया है। किन के वसीला से हम जिंदा हैं? खुदा के हुक्मों की वजह से। आपको पता है, इफ्सियों की किताब में लिखा है कि जब तुम अपने कसूरों की वजह से मुर्दा ही थे, तो यीशु ने अपना लहू बहाकर तुम्हें जिंदा किया। यानी कि जब हम गुनाह करते हैं, दिखने में तो जिंदा हैं, लेकिन खुदा की नजर में तो मुर्दा हैं। जब हम बाप आदम और अम्मा हवा की तरह नाफरमानी करते हैं, दिखने को तो हमने कपड़े पहने हैं, लेकिन खुदावंद मुकाशफा 2 बाब में फरमाता है, बदबख्त इंसान, तू मेरे सामने नंगा खड़ा हुआ है। कैसे हो सकता है कि हम इस नंगेपन को ढांक सके? कैसे हो सकता है हम इस बदकारी को ढांक सके? कैसे हो सकता है कि हम इस निजात याफ्ता जिंदगी को, निजात हमेशा हासिल करने के लिए निजात याफ्ता रहें? वो एक ही काम है दोस्तों, पहले खुदा पर ईमान लाना, फिर उसके बाद उसकी कही हुई बातों पर अमल करना। याद रखिएगा दोस्तों, खुदावंद के जो हुक्म हैं वो पाक हैं, वो रास्त हैं, वो अच्छे हैं। जब उन पर अमल करेंगे तो तभी जिंदा रहेंगे।
असल शुक्र गुजारी तो यह है कि हम खुदा के हुक्मों को माने। ये रूहानी शुक्र गुजारी है, ना कि जिस्मानी। हम इबादत करते हैं, खुदावन का नाम जपते हैं, बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन वो क्या कहता है, जो खुदावन खुदा खुद कहता है, वो कहता है मेरी शुक्र गुजारी मेरे हुक्मों को मानने से होती है। दो टोक अल्फाज में एक ही बात कर दी कि आप इबादतें ना करो, आप अच्छे काम करते रहो, आप सिर्फ अच्छे काम ही करो। वो कहता है तेरा चलना उठना बैठना खाना पीना मसीह हो जाए तो तू एक चलती फिरती हैकल है, तू चलती फिरती अंजील है। दोस्तों याद रखिएगा, हमें अपना चाल चलन ऐसा रखना है कि जैसे मसीह का था, हमें अपना मिजाज ऐसा रखना है कि जैसे मसीह का था। गो के हम कामिल होने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, हम खाकी हैं, बात बात पर गुनाह करते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये भी खुदा के लोग थे। आखिरकार खुदावन का नाम जप जप के, खुदावन के हुक्मों पर अमल कर करके वो खुदावन के साथ चलना शुरू हो गए। खुदावन के हुक्मों के तीन बड़े असूल हैं, तीन बड़े अफवाद हैं, तीन बड़े फायदे हैं, तीन बड़े असूल ये हैं। सबसे पहले खुदा के हुक्म जो हैं वो हमारी रास्ती को शो करते हैं, हमें दिखाते हैं कि हम कितने गुनाहगार हैं। मिसाल के तौर पे मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं अगर खुदा के हुक्म ना आते, खुदा के हुक्म ना आते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि गुनाह क्या है, तो मैं मौत में रहता। खुदा के हुक्म आए, मुझे पता चला कि मैं गुनहगार हूं, अब मुझे तौबा करनी है ताकि मैं खुदा के साथ रहूं। पहले हमारी नाराजगी को शो करते हैं, दूसरी खुदा की सदाकत को दिखाते हैं कि खुदा कितना सच्चा है, खुदा कितना पाक है, खुदा में गुनाह नहीं पाया जाता। तो वो कहता है जैसा मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो ताकि मैं और तुम एक हो जाएं। दोस्तों पाक होना कोई मुश्किल बात नहीं, हमने खुद इन चीजों को मुश्किल बनाया हुआ है। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। हालांकि पुराने अहदनामा में आप देखते हैं खुदावंद फरमाता है कि मेरे हुक्म मुश्किल नहीं है। यही बात को मुकद्दस पतरस रसूल तमाम मुकद्दसीन फरमाते हैं नए अहदनामा के अंदर कि खुदा के हुक्म मुश्किल नहीं है। वो कहता है कि ज़ना ना करो, वो कहता है ऐबजोई ना करो, वो कहता है चुगली ना लगाओ, वो कहता है एक खुदा को मानो, वो कहता है मूर्ति ना बनाओ, वो कहता है कि मुझे सजदा करो। ये सारे हुक्म बहुत आसान है। वो कहता है चोरी ना करो, वो कहता है नशा ना करो। क्या ये आसान नहीं? ये आसान है, हमने खुद मुश्किल बना दिए हैं। ये बहुत आसान है लेकिन हमने खुद मुश्किल बना दिए। और रूहानी हुक्मों में कि तुम हर रोज बाइबल मुकद्दस पढ़ो, हर रोज दुआ करो। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, कितने लोग हैं जो हर रोज दुआ और बाइबल मुकद्दस दोनों करते हैं 24 घंटे में? एक, दो, तीन, एक नहीं, दोनों काम। अंकल और नुमान, देखिएगा दोस्तों, हमारी ये शुक्र गुजारियां किसी काम की नहीं है, क्योंकि जिंदा खुदा फरमाता है कि मैंने तेरे लिए जान दी है। अब मैंने तेरे लिए जान क्यों दी है उसको समझने के लिए आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। ये बाइबल है क्या? ये बाइबल कोई आम चीज नहीं है। इसी के बारे में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा है। इस कलाम को जब दिल में रखेंगे तो आप गुनाह नहीं करेंगे। इस कलाम को जब दिल में रखेंगे तब शुक्रगुजारी होगी। इस कलाम को जब दिल में रखेंगे तभी मसीह कहलाएंगे, वरना नाम के मसीह। वो कहता है तुम होंठों से तो मेरा नाम लेते हो लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। आप किसी चीज को अगर जानते हैं, आपको किसी चीज को जानना है तो आपको उसके साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, आपको उसके साथ टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम गुजारना पड़ेगा। आप किसी चीज से, आप किसी रिश्तेदार को देख लें, आप किसी भी इंसान को देख लें, जब उसको जानना हो तो आप उसके साथ वक्त स्पेंड करते हैं। तो आप नहीं चाहते कि आप उसको जाने कि जिसने आपके लिए जान दी, जिसने मेरे लिए जान दी। वो कि हम गुनाह के अंदर थे और उसने कहा तुम गुनाह के अंदर थे, गुनाह के अंदर थे, मैंने तेरे लिए जान दी। गो के रास्तबाज के लिए तो कोई जान ही नहीं दे सकता, लेकिन तुम गुनाह के अंदर थे तो मैंने तेरे लिए जान दी। आप नहीं चाहते कि हम उसे जाने, हम उसे समझे वो है कौन, वो क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, इंसान थोड़े दिनों का है, दुखों से भरा हुआ और थोड़े दिनों का है। ये पहले ही खुदा ने फरमा दिया। और अगर इन दुखों से निकलना चाहते हैं और दिनों को बढ़ाना चाहते हैं तो खुदावंत के साथ चलिए। खुदावंत के हुक्म हमारी उम्र को दराज करते हैं। बाइबल को पढ़ेंगे तो खुदा के हुक्मों की समझ आएगी, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगी। याद रखिएगा, एक खाली घर है, खाली घर के अंदर आप पानी डाल दें या खाली मटके के अंदर आप पानी डाल दें तो वो पानी से भर जाता है, लेकिन वो खाली हो तो वो क्या रहेगा? वो खाली ही रहेगा। लेकिन इंसान का जिस्म इससे बिल्कुल उलट है। ये इंसान का जिस्म है,
इसके अंदर आप कलाम को डालें, ये कलाम से भर जाएगा। इसके अंदर आप कलाम को नहीं डालें तो ये खाली रहेगा, ये खाली नहीं रहेगा। इसके अंदर 7 गुना ज्यादा बदरूहें आके रहेंगी। ये जिस्म के अंदर शैतान इब्लीस भर जाएगा। अगर मटका या कोई भी चीज आप घरों को ले ले, अगर उनमें चीजें ना डाले तो वो खाली रहेंगे। लेकिन इंसान की फितरत और इंसान का जिस्म खुदा ने ऐसा नहीं बनाया। अगर आपके अंदर कलाम नहीं तो दोस्तों याद रखिएगा, आपके अंदर और मेरे अंदर शैतान इब्लीस काम करेगा। हमारी हरकतें बताएंगी कि मैं शैतान का बेटा हूं, गो कि मैं अपने अल्फाज से खुदा का बेटा हूं। लेकिन खुदावंद फरमाता कि तुम उनके फलों से, दरख्त अपने फलों से और इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। आपको फैसला करना है कि क्या मैं खुदा की नस्ल से हूं, और अगर मैं खुदा की नस्ल से हूं तो खुदा के हुक्म कहां हैं, और अगर मैं शैतान की नस्ल से हूं तो मेरे काम मुझे बताएंगे कि मैं किसका बेटा हूं। हमेशा शुक्रगुजारी करते रहे। खुदावंद फरमाता है हमेशा मेरे ताबे रहो। खुदावंद की शुक्रगुजारी खुदावंद के हुक्मों को मानने से होती है। आप तमाम अंबिया मुरसलीन को देखें, तमाम अंबिया असगर को देखें, अंबिया अकबर को देखें, नबी रसूलों पैगंबरों को देखें, उस्तादों को देखें, रसूलों को देखें, आप मुबशरों को देखें, आप नबियों को देखें। जितने लोग खुदा के हैं वो सभी खुदा की हुक्म अदूली नहीं करते रहे, बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलते रहे, खुदा की शरीयत पर अमल करते रहे। और आज उनका नाम हजारों साल बाद भी लिया जाता है, और मेरा ईमान है उनका नाम आसमानों पर लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों याद रखिएगा, कलाम खुदा को पढ़ते रहें हर रोज दुआ कीजिए। आपको जो पैदा करता है, हमें जो खिलाता है, जो इस दुनिया को चलाता है, जो सूरज को हुक्म देता है वो आ जाता है, जो चांद को हुक्म देता है वो आ जाता है। आपके सामने तमाम जानवर चरिंद परिंद घूमते फिरते हैं। उसकी शुक्रगुजारी इसको पढ़कर इस पर अमल करने से ही होती है। तभी हम मसीही कहलाते हैं, तभी हम खुदा का मकदस कहलाते हैं, तभी हम खुदा के बेटे कहलाते हैं। वरना अपने मुंह से कहते रहें उसकी नजर में हम नहीं हैं। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। दोस्तों आखिरी दुआ करेंगे ताकि खुदावंद हमारी तमाम रक्षा करे। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी नाम की तारीफ हो। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन और कुल कायनात के खुदा। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि बाप तू बहरों भर का खालिक और मालिक है। आसमानी अब्बा तू नूरों में रहने वाला खुदा है। आसमानी बाप तू ऐसा खुदा है जो हर एक चीज को मुहैया करता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता और हर एक जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। आसमानी बाप तूने अपनी हिकमत से आसमानों को ताना, तूने अपनी कुदरत से जमीन की नींव डाली। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ आज के इस कलाम के लिए। खुदावंद ये कलाम हमारे लिए 30, 60, 90 गुना फल डाला है, बल्कि 100 गुना फल है। खुदावंद अगर हमें कोई कमी कमजोरी है तो तेरे यीशु नाम में दूर हो। आसमानी बाप अगर हम गलत काम करते तो तेरे यीशु नाम से तौबा करे। आसमानी बाप अगर हम नशा करते, चोरी करते, माँ बाप की नाफरमानी करते, एक खुदा से ज्यादा खुदा को मानते हैं, खून करते हैं, ज़नाकारी करते हैं, तो सब गुनाहों को आज तेरे यीशु नाम से मैं दूर करता हूँ। हालेलुया। आसमानी बाप ये तेरे बच्चे हैं, खुदावंद हम तेरे बेटे बेटियां, तेरे मकदस, तेरे चर्च, तेरी कलीसिया है। खुदावंद देख कैसे तेरे नाम को जपने के लिए हम अपने बदलों की कुर्बानी देते, हम अपने वक्तों की कुर्बानी देते, हम अपने नौकरियों की कुर्बानी देते। आसमानी बाबा हम अपने घरों को छोड़कर तेरे यीशु नाम को पुकारने के लिए दूर दराज आते हैं, ताकि है बाप हम घटते जाए और तू बढ़ता जाए, हम पीछे हो और तू आगे हो, हर वक्त तेरा नाम ही पुकारा जाए। आसमानी बाप मैं जानता हूं ये घर है खुदावंद तेरे नाम से मसरूर है, ये घर है खुदावंद तेरे नाम की हमदो सना करता है, तेरे नाम की तमजीद करता है, तेरे कलाम को पढ़ता है, तेरे खुदावंद खुदा चरणों में गिरने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। आसमानी अब्बा तूने कहा जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो। ऐ खुदा मैं इस घर की सलामती चाहता हूँ। आसमानी अब्बा ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐ खुदा टॉप टू बॉटम, ऐ खुदा पैरों से लेकर चांद तक इस घर को अपनी पनाह में रखना। ऐ खुदा अपने जलाली रथों के पहरे, आतशीन फरिश्तों के पहरे, तमाम क्रोबीम सराफीम तराफीम के पहरे, तमाम मलाइक के पहरे ऐ खुदा इस घर के चारों तरफ लगा दे। आसमानी अब्बा जैसे तूने अलीशा नबो को आतशी रथों के पहरे दिखाए, जंगजू रथों के पहरे दिखाए, ऐ खुदा वो फरिश्तेगान इस घर के चौगिर्द हो। आसमानी बाप जैसे मुकद्दस अयूब नबी के चारों तरफ घर के बाढ़ तूने लगाई, वो भाड़ इस घर पर लगा। लेकिन खुदावंद खुदा
हमें भी यह तौफीक अता फरमा, हम भी तेरे कलाम के मुताबिक चल सके, क्योंकि जितने मुकद्दसीन की तरफ तूने बाड़े लगाए, तूने उनकी तरफ मलाइक भेजे, ऐ खुदा वो सब तेरे ताबेदार थे, तेरे फरमाबरदार थे। आसमानी अब्बा, इन तमाम दुआओं को मैं चाहता हूँ ये यहाँ ना रहे, बल्कि बखूर की माने तेरी पास जा पहुंचे। आसमानी अब्बा, इस घर की सलामती एक बार फिर से चाहता हूँ। ऐ खुदावंद, इन तमाम दुआओं मुनाजातों इल्तिजाओं को मांग लेता हूँ तेरे ही प्यारे बेटे यहोशुआ हमशियाह खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा उनकी सिखाई दुआ में सब शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में जमीन पर हो। हमारा रोज रोटी आज दे दे और इस हमने कर्जा हमारे कर्जा हमें हमारे बादशाह कुदरत जलाल और हमेशा तेरे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत खुदा के तमाम मुकद्दसीन के साथ हो, खुदा के तमाम बेटे बेटियों के साथ हो, खासकर शहर यरूशलेम और मुल्क इजराइल के साथ हो। आसमानी बाप, एक बार फिर से दुआ करता हूं इस घर के सरबराह के लिए, ऐ खुदावंद इस घर की माँ के लिए, ऐ खुदावंद इस घर के बच्चों के लिए, ऐ खुदावंद इस घर की बेटे बेटियों के लिए, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, ऐ खुदावंद इन सबको अपने जलाल में घेरे रहना, ऐ खुदावंद इन सबको अपने परों तले रखना। आसमानी बाप, इन सब पर अपना जलाली हाथ बढ़ाए रखना, तमाम नेमतें बरकतें फजीलतें रहमतें ये हासिल करने वाले हों, और ऐ खुदावंद तेरा जलाली खून, ऐ खुदावंद जो पाक कर देता है, इन सभी को पाक कर दे, ताकि ऐ खुदावंद ये तेरे नाम में बढ़ते चले जाएं। और ऐ खुदावंद जितनी ऐसी आदत हैं जिनसे तू खुश नहीं होता बल्कि नाराज होता है, ऐ खुदा हम उन सबको छोड़कर तेरे पाक कलाम को पढ़ने वाले हों, तेरे सामने दुआ करने वाले हों और तेरे साथ चलने वाले हों। आसमानी अब्बा, एक बार फिर से इन तमाम दुआओं को मांग ले तो तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय यीशु दी, हर शय यीशु दी। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदावंद के जोरे बाजू में बढ़ते चले जाए। इबादत हो चुकी, आप सलामती से एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। जय यीशु। सलाम सलाम, जय सलाम अंकल। आप नवीन भाई की बेटी हैं? क्या नाम है आपका? शेरली, शेरिल, शेरिल और हमारे इस्तिशना। वाह जी वाह, वेरी गुड। खुदावंद आप सबके साथ हो।